ధరణి న్యూస్ జనం కోసం నిజం కోసం సామాన్యుని గొంతుక. వెల్కమ్ టు ధరణి టీవీ. ఈ రోజు న్యూస్ అప్డేట్స్ ఏంటో చూద్దాం. తాంబూలమిదం గ్రహణ స్వాహ మంగళనీరాజనమిదం గ్రహణ స్వాహ సర్వోపచారాని మాం గ్రహణ స్వాహ. నమస్తుభ్యం భగవతే భక్తాభీష్టప్రదాయినే అస్మిన్నగ్నౌ సన్నిధత్స్వ పూజామపి గృహాణమే. తథా గుండాదిదేవతా మంత్రైః మూలమంత్రైః మూర్తిమంత్రైశ్చ యథా సంభవం ఆజ్యాహుతిర్హోష్యే ఇది సంకల్ప్య. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే సంకర్షణాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే అనిరుద్ధాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే పురుషాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే సత్యాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే అచ్యుతాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే అనంతాయ స్వాహా. ఓం స్వాహా. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఆయా శాలల్లో కుండమంత్ర హవనాన్ని, అలానే మూలమంత్ర హవనాన్ని, మూర్తిమంత్ర హవనాన్ని జరపవలసిందిగా హోతలకి సూచన. ఉపద్రష్టులు గమనించుకోవలసిందిగా వారికి కూడా సూచన చేస్తున్నా. జై శ్రీమన్నారాయణ. మూలమంత్ర హవనం పూర్తయిన తర్వాత పురుష సూక్త హవనం, శ్రీ సూక్త హవనాన్ని జరుపుకుంటాం. లక్ష్మీనారాయణ యాగ మహోత్సవంలో భాగంగా పురుష సూక్త, స్త్రీ సూక్త హవనాన్ని మరికొద్ది క్షణాల్లో మనం ప్రారంభించుకుంటాం. ఇక్కడ ప్రధాన యాగశాలలో అనుసంధానం చేస్తారు. దాన్ని అనుసరించి ఆయా శాలల్లో హవనాన్ని జరపవలసిందిగా సూచన. జై శ్రీమన్నారాయణ. रामानुजायति रामानुजा प्रपन्न जनगति रामानुजा. 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 श्रीपति चित्तज रामानुजा हारित गोत्रज रामानुजा. केशवनन्दन रामानुजा कान्तिमती सुत रामानुजा. रामानुजायति रामानुजा प्रपन्न जनगति रामानुजा.
शार्द्र संभव रामानुजा मेरुनगधीर रामानुजा श्रीभूतपुरी जग रामानुजा भूतियुगदाता रामानुजा रामानुजायते रामानुजा జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ. స్వాములందరికీ కూడా సూచన, మన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 108 దివ్య దేశాలలో అర్చకులుగా ఉండకు చాలామంది ఆసక్తిని చూపిస్తూ ఉన్నారు. అలా మీకందరికీ ఇక్కడ ఆలయాలలో అర్చకులుగా ఉండాలనేటువంటి ఆసక్తి కనుక ఉన్నట్టయితే మీ యాగశాలలో ఉన్నటువంటి ఉపద్రష్టులకు తెలియజేయండి, వారు నేరుగా మాకు తెలియజేస్తారు. అర్చకులుగా ఉండడానికి చాలామంది ఆసక్తిగా ఉండి అడుగుతున్నారు. మీరు మీ యాగశాల ఉపద్రష్టులకు కనుక తెలియజేసినట్టయితే వారు వచ్చి మాతో తెలియజేస్తారు. గమనించి అర్చకులుగా ఉండాలనుకునే వారంతా కూడా మీ ఉపద్రష్టులు కానీ ఇక్కడ ప్రధాన యాగశాలలో ఉన్న స్వాములకు ఎవరికైనా కానీ తెలియచేయవలసిందిగా సూచిస్తున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. వాయవేదం ఓం సువస్వాహ సూర్యాహేదం ఓం భూర్భువస్సువస్వాహ ప్రజాపతిగిరాం ఓం అజితేన్వమగ్గుస్థాః అనుమతేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః ప్రాణానాయమ్యా. పురుష సూక్త స్త్రీ సూక్త హవనానికి అంతా కూడా సంకల్పం చేసుకుందాం. ఓం పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ యథా సంకల్పిత హవన కర్మణి పురుష సూక్త స్త్రీ సూక్త హవనాఖ్య కర్మ కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య ఓం అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసువా. ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షः సహస్రపాత్ స భూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్ఠద్దశాంగులం. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ. ఓం పురుష ఏవేదం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వస్యేషానః యదన్నేనాతిరోహతి. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ. ఓం ఏతావానస్య మహిమా అతోऽధ్యాయాగుశ్చ పూరుషः పాదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ. ఓం త్రిపాదోర్ధ్వ ఉదయత్పురుషः పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వం వ్యక్రమత్ శాసన శనే అభి. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ. ఓం తస్మాత్ విరాడ జాయత విరాజో అధిపురుషః స జాతో అత్యరిచ్యత పశ్చాత్ భూమిమథో పురః. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ. ఓం యత్పురుషేణ హవిషా స్వాములంతా కూడా స్వాహాకారం జరపాలి. యజ్ఞమతన్వత వసంతో అస్యాసీదాజ్యం గ్రీష్మ ఇత్మ శరద్ధవిః. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ. ఓం సప్తాస్యాసన్ పరిధయః త్రిస్సప్త సమిధః కృతాః దేవాయజ్ఞం ధన్వానాః అబద్ధన్ పురుషం పశుం. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ. ఓం తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రోక్షన్నే పురుషం జాతమగ్రతః తేన దేవా అయజంత సాధ్యారుటయశ్చయే. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ. ఓం తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతః సంభృతం వృషదాచం పశూకుస్తాకుశ్చక్రే వాజవ్యాన్ ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్చయే. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ.
ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुं जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ॐ तस्मादश्वाजायन्त ये केच भजादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ॐ यत्पुरुषं यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरूपादा उच्यते ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ॐ ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दितश्रोत्रात् तथा लोकाकुम् अकल्पयन् ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनुगदा जी जो मद्रास में भगवान विराजमान हैं, पार्थसारथी भगवान की कृपा से मानी रामानुज स्वामी की माता पिताओं ने प्रार्थना की थी उत्तम संतान के लिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार रामानुज स्वामी जी का अवतार हुआ था भूतपुरी में, जिनका सहस्राब्दी महोत्सव हम लोगों के आगे लोगों ने भी दर्शन नहीं किया, बाद के लोग भी दर्शन नहीं करेंगे। हम सब लोग दर्शन कर पा रहे हैं, कितने हम सब लोग भाग्यशाली हैं। आज विश्व के कोने कोने से इस महोत्सव का सज्जन लोग, ज्ञानी लोग दर्शन कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज, अपने जीयर स्वामी जी महाराज की इच्छा है, छोटे से छोटा जो बालक है वो भी रामानुज स्वामी जी कौन थे और रामानुज स्वामी जी ने क्या किया था, क्या उनका अलौकिक वैभव था, सब लोग समझ रहे हैं। रामानुज स्वामी सारे विश्व के लिए महोपकार किया है, इसीलिए जो रामानुज स्वामी जी की आज्ञा है लोक हितैषिणी, इस प्रकार पूर्वजों ने बताया। जिन दिव्य देशों से, क्षेत्रों से रामानुज स्वामी जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी, उन 108 दिव्य देशों की, और यहाँ रामानुज स्वामी जी के चारों ओर यहाँ भूमंडल में 106 दिव्य देशों का दर्शन होता है। 2 दिव्य देश ऊपर हैं, क्षीर सागर का भी हम इन नेत्रों से दर्शन नहीं कर पाते हैं, परम पद का भी इन नेत्रों से दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो दिव्य देश भी यहाँ साथ में रहेंगे। कहाँ मुक्तिनाथ, कहाँ बद्रीनाथ और कहाँ वानमामलई, कहाँ तिरुमला। विभिन्न क्षेत्र में खर्च भी करके जाना पड़ता है और आयास कष्ट भी झेल के जाना पड़ता है, लेकिन उन सब सन्निधियों का एकत्र जो दर्शन होना, ये अपने जीयर स्वामी जी महाराज की एक विशेष निर्हेतुक अनुकंपा है। ऐसे महोत्सव में हम लोग आए हैं विभिन्न कोण से। सबके केंद्र कौन है? रामानुज स्वामी। आज से 1000 वर्ष आगे ही जिन्होंने पूरे विश्व के लिए समता का संदेश दिया था। सारा जगत जो भगवान की संतति के स्थान में है, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सुयोग्य है। माने पशुर मनुष्य पक्षीवा ये च वैष्णव संश्रया तेनैव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम। हमारे यहाँ जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। Excellencies, distinguished delegates, devotees from all the walks of life, it gives us a great pleasure to extend to you all a very warm welcome. We are very delighted to have Shriman Amit Shah ji, our Honorable Home Minister of India, at Samata Murthy Ramanujacharya Samaroham celebrations. We extend a hearty welcome to Amit Shah ji onto the dais.
Jai Sriman Narayana, we are very, very excited to have Honorable Home Minister of India, Shriman Amit Shah ji, grace this occasion. We are very proud to have representatives from all walks of life. The leaders of the nation arrive here to show their solidarity to the message of equality given by Ramanujacharya. How else can we express gratitude to this great nation where everybody is equally taking part in these celebrations of the equality? Samata Spurti Kendra is already sending a strong message that it includes each and every leader from all walks of life, be it the leaders who are governing the nation. Jai. We are very delighted to have Shriman Amit Shah ji, the Honorable Home Minister of India, at this gracing this event. We extend a hearty welcome to Amit Shah ji onto the dais. We pray to His Holiness Sri Chinnajiyar Swami ji to grace this dais. It's such a great sign of humility that the leaders who are running the nation are meeting the Dharmacharyas who have assembled here to discuss about the power of equality that is given to us by Ramanujacharya Swami 1000 years ago. We also request Shriman Bandi Sanjay ji, Shriman Dr. Jupeli Rameshwar Rao ji, Shriman Chalimeda Lakshmi Narsimha Rao ji, Srimati Vanaja Bhaskar Rao ji onto the dais. Srimati Vanaja Bhaskar Rao ji, please welcome onto the dais. And we pray to His Holiness Chinnajiyar Swami ji to address the great gathering here today. Jai Sriman Narayana. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन नारायण। आज भाग्यनगर को भाग्यवान बनाने के लिए भगवद रामानुजाचार्य स्वामी जी की समता मूर्ति यहाँ निर्माण होकर और उनकी प्रतिष्ठा के लिए 1035 कुंडों से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कार्यक्रम होने का सुअवसर पर आज और कल 2 दिन भारत में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों से
यहाँ धर्माचार्य और संतगण विद्वान यहाँ पर पधारे थे। उनका सदस्य आज यहाँ पर आरंभ हुआ है और इस सुअवसर पर अपने भारत का महत्व को और अपना धर्म का वैभव को दुनिया को बताते हुए भारत माता की श्रृंखलाओं को जिन्होंने तोड़ा था, भारत माता का मुखार बिंदु को उठाकर मुस्कुराने जैसा किए थे हमारे अमित शाह जी और अपने प्रधानमंत्री जी। अब आज यहाँ पर श्रीमान अमित शाह जी पधारे हैं। श्रद्धा से धर्म का पालन करते इस यज्ञ का संदर्शन के लिए, समता मूर्ति का संदर्शन करने के लिए और धर्माचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। वे अभी यहाँ आकर समता मूर्ति के बारे में यहाँ पर की गई व्यवस्था को दिखाने वाले एक प्रीव्यू थिएटर है, उसका उद्घाटन करके तत्पश्चात समता मूर्ति का संदर्शन और यहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी को प्रेरणा देने वाले 108 जो दिव्य देश यहाँ पर बने हैं उनका भी संदर्शन करके यहाँ आप सब धर्माचार्यों का और भक्तगण का आशीर्वाद लेकर अपना देश का महत्व को और भी ऊपर ऊपर आसमान तक ले जाने के लिए कटिबद्ध होकर यहाँ पर आए हैं श्रीमान अमित शाह जी। यहाँ पर समता मूर्ति का निर्माण के लिए 2014 से एक कल्पना करके निर्माण आरंभ हुआ और अब वो ही कल्पना साकार होकर रामानुजाचार्य स्वामी जी की भव्य मूर्ति को संदर्शन करने का अवकाश दे रहा है। कोई पूछे रामानुजाचार्य स्वामी जी के लिए उतनी ऊंचाई में मूर्ति का निर्माण करने का क्या जरूरत थी, तो कहा रामानुजाचार्य स्वामी जी समता का एक आइकॉनिक पर्सनालिटी थे। ये आज नहीं है, 1000 साल पहले की बात थी, 1000 साल पुरानी बात थी। उस काल खंड में समता जैसे बातों को कल्पना भी कर नहीं सकते थे लोग। जो आचार व्यवहार उतना रिजिड रहता था उस समय में, कोई ऐसी बात अपने मुंह से कहते तो उनको घोर दंड दिया जाता था और उनको समाज से बहिष्कार करते थे या उनको वहीं समाप्त भी करते थे। महिलाओं को तो मंत्र का अवकाश ही नहीं थी उस समय में। ऐसे समय में रामानुजाचार्य स्वामी उन बैरियर्स को हटाकर सबको भगवान का मंत्र जपने का अधिकार है, महिलाओं को भी साधिकारता दिए थे। और समाज में रहने वाले जो दीन दलित
ऐसे लोगों को भी भगवान का दर्शन करने के लिए उन्होंने द्वार खोल दिए, मंदिर में भी उन लोगों को प्रवेश कराए। उनकी प्रेरणा इन सारे मंदिर दिए थे। तो रामा स्वामी जी का वो ऊंचाई जो है, हम भी रामानुजाचार्य स्वामी जी का मूर्ति जैसे ऊपर ऊपर बढ़ जाएं, समता का संदेश लेकर। एक एक भी जो यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, वो सब अपना अपना नियम के अनुसार समाज में समता की पालना करते हुए ऊपर आसमान ही सीमा ऐसा बढ़ने के लिए ही ये मूर्ति इतनी बड़ी बनी है। आनंद की बात है, इस प्रोजेक्ट 6 साल में साकार करके दिखाए हमारे डॉक्टर रामेश्वर राव जी, और यहाँ पर उपस्थित श्रीमान चलमेड लक्ष्मण राव, लक्ष्मी नरसिम्हा राव उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और श्रीमान संजय जी तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी तो है ही हैं। और आपका आगमन से इस प्रोजेक्ट का महत्व बढ़कर इसकी शोभा अत्यंत विकास होकर सब इसका फल लेने के लिए मार्ग खुला है। श्रीमन, आपका स्वागत कहते हुए और आपका मन का भाव और जनता को संबोधन से आप बता दें, ऐसा हम आपको आह्वान कर रहे हैं। प्रीतम गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी। मंच पर उपस्थित श्री श्री त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी जी, डॉक्टर जे रामेश्वर राव मुख्य ट्रस्टी, श्री सी लक्ष्मण राव अध्यक्ष जीवा, मेरे साथी सांसद और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंडी संजय कुमार जी, और आज देश भर से अनेक मत, अनेक संप्रदाय के यहाँ पधारे हुए सभी संतगण, सभी आचार्यगण, आप सभी के चरणों में प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। स्वामी जी की विनम्रता कई बार क्षोभजनक कुछ लोगों के लिए हो जाती है। उन्होंने कहा कि महान स्मारक जो रामानुजाचार्य का उनके जीवन की कल्पना और जीवन के कर्तृत्व से बना है, मेरे आने से लोगों को आने की यहां प्रेरणा होगी। स्वामी जी, संतों का स्वभाव होता है सूक्ष्म लोगों को बढ़ाई कर कर बड़े करना, परंतु मैं जानता हूं यहां आकर मैं आज चेतना और उत्साह दोनों को प्राप्त कर कर मेरे जीवन में आगे बढ़ने वाला हूं। इस प्रकार के जो महापुरुषों के स्मारक होते हैं, वो जिनके अंदर संवेदना होती है, धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा होती है, इच्छा होती है, ऐसे लोगों को अनेक सालों के सालों तक काम करने की चेतना और उत्साह देते हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से स्वामी जी आपको कहना चाहता हूं, आप युगों तक ऐसे अनेक धर्म अनुरागी लोगों को प्रेरणा
और उत्साह आपका ये भगवत रामानुजाचार्य का जो स्मारक बनाया है वो देता रहेगा। पूज्य संतगण यहां उपस्थित है। मैं इस सबके भी कहना चाहता हूं कि कोई भी मत, कोई भी संप्रदाय के अनुयायी हो, वो सभी को एक बार यहां आने की प्रेरणा इसलिए देनी चाहिए कि अंततोगत्वा सनातन धर्म की शरण में ही सबके उद्धार का मूल बसा हुआ है। रामानुजाचार्य के जीवन के 1000 साल, उनकी सहस्राब्दी, इसका इससे बड़ा उनके काम को कोई भावांजलि भी नहीं हो सकती, स्मरणांजलि भी नहीं हो सकती, कार्यांजलि भी नहीं हो सकती। रामानुजाचार्य के जीवन को, उनके संदेश को सब जीव एक समान है, वेदों के मूल वाक्य को उन्होंने समय की गर्त से बाहर निकालकर अपने कर्तृत्व से किसी की भी लिए कटु कुछ बोले बगैर अनेक परंपराओं को तोड़ते हुए समाज के बीच में रखा, उसको प्रस्तावित किया और आज 1000 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरे विश्व को वो संदेश दे रहा है। इस स्टैच्यू ऑफ इक्विटी की प्रतिमा अभी हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दंडी स्वामी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। मैं अभी वहां जाकर आया हूं। अगर दूर से देखते हैं तो ये प्रतिमा दूर से देखते ही अद्भुत आत्मा को शांति देती है, चित्त को प्रसन्नता करती है और मन को आह्लाद कर देती है। मगर जैसे ही नजदीक जाते हैं और वो हॉल से होकर रामानुजाचार्य का संदेश देश की सभी भाषाओं में सभी मुमुक्षुओं को मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था जो स्वामी जी ने की है, उसको ग्राह्य करते 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 समय निकालकर जब ऊपर जाकर रामानुजाचार्य के विराट मूर्ति का दर्शन होता है, तब मालूम होता है कि हम कितने बड़े महापुरुष को प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवत रामानुजाचार्य ये पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए इक्वालिटी का, समता का जो संदेश दिया, वो इस स्मारक के बाद युगों युगों तक न केवल भारत, समग्र विश्व में ये अपना संदेश, सनातन धर्म का संदेश फैलाने का काम करेगा, उसका मुझे विश्वास है। भारत के इतिहास को महाभारत के पहले से लेकर रामायण काल से लेकर आज तक देखे थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और सनातन धर्म भी काल की अनेक थपेड़ों को खाते 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 अपनी अस्तित्व को बचाते हुए, कभी दैदीप्यमान स्वरूप से, कभी आगे आने वाले स्वरूप में जाने के लिए एक प्रकार से कभी काल बाह्य होने बगैर सनातन धर्म भी इसके साथ ही आगे बढ़ता गया। हमने देखा है सनातन धर्म पर जब जब संकट आया, कोई ना कोई आया जिसने सनातन धर्म की ज्योत को प्रज्वलित की, दैदीप्यमान की और एक ज्ञान यात्रा को समग्र विश्व में आगे बढ़ाया है। रामानुजाचार्य भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने शंकराचार्य के बाद एक काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। आदि शंकर ने ढेर सारे मतांतरों को एक करते हुए सनातन धर्म की छत्र छाया में देश को एक करने का, एक छतरी के नीचे लाने का काम किया और रामानुजाचार्य ने अपने जीवन कवन से पूरे देश को सनातन धर्म के साथ जोड़ने का काम किया। कई सारे कुरिवाज, कुप्रथाएं कटु विरोध करे बगैर अपने कर्म से उन्होंने बदली। कई बार मैं जब पढ़ता हूं तब मुझे विचार आता है कि सनातन धर्म में ऐसा क्या है कि जिसकी धारा क्षुण्ण रूप से कालबाह्य होए बगैर बह ही जाती है, बह ही जाती है। ऐसा क्या है, इसके अंदर अमृत तत्व क्या है? और कई सारे धर्मों का भी अभ्यास करते हैं
जब तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो नजर में आता है कि सनातन धर्म में मैं ही सत्य हूं, ये जड़ता और अहंकार नहीं है। हमारे यहां शास्त्रार्थ की व्यवस्था रही, खंडन की व्यवस्था रही, मंडन की व्यवस्था रही और श्रेष्ठ को स्वीकारने की विनम्रता भी रही। और इसी के कारण सनातन धर्म आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हो सकता है आज ध्यान से देखने वालों को देखे कि हम काफी पिछड़ गए हैं, मगर ये सारे देश के सभी मतों के संप्रदाय के आचार्य यहाँ बैठे हैं। आप सभी को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि यात्रा ना कभी रुकेगी, ना कभी थमेगी और फिर से एक बार दिग्विजयी होकर पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेगी। आज मैं जब यहाँ आया हूं तब इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर जो स्मारक बनाया है और इसके साथ साथ वेद अभ्यास की भी व्यवस्था करी है। वेद की 9 के 9 शाखाओं के अभ्यास शास्त्रोक्त तरीके से हो सके, ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ से निकलेंगे, पूरे देश भर में फैलेंगे और जहां जहां जाएंगे वहां वेद के ज्ञान की सुगंध को, उसकी ज्योत को प्रज्वलित करते जाएंगे। और इसके साथ रामानुजाचार्य का जो संदेश था, उनका जीवन का संदेश था, और इस संदेश को हर व्यक्ति समझ सके, इस प्रकार से यही स्मारक के साथ देश की सभी भाषाओं में प्रसारित करने का काम स्वामी जी ने किया है। मैं फिर से पूज्य श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी को बहुत 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 समग्र देश की ओर से साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जब मैं यहाँ आया हूं तब यहाँ पर 1035 कुंड के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी हो रहा है। चारों वेद की 9 की 9 उपलब्ध शाखाओं का पाठ भी किया जा रहा है। अष्टाक्षरी मंत्र का 10 करोड़ जाप हो रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये धरती हमेशा के लिए कितनी पवित्र होने वाली है। इतिहास, पुराणों और आगमों का भी पाठ हो रहा है। सभी प्रकार की पूजा व्यवस्था और पूजा पद्धति को भी समाहित और संरक्षित करने का भी यहाँ पर एक व्यवस्था किया गया है। और श्री रंगम के रंगनाथ, तिरुमाला के तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी सहित 108 प्रेरणा केंद्रों दिव्य देशों के अभिषेक से ये मूर्ति के आगे यज्ञ संपन्न हो रहा है। महाप्रसाद भी 24 घंटे भक्तों के लिए वितरित किया जा रहा है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपका ये जो प्रयास है, आने वाले अनेक सालों तक स्वामी जी को पूरा देश याद रखेगा। सनातन धर्म के सभी अनुयायी, चाहे किसी भी मत को मानने वाले हो, वो सभी इसको जरूर याद करेंगे, इसका अनुमोदना भी करेंगे। मेरा स्वामी जी से परिचय 2003 में गुजरात में जब भूकंप आया तब हुआ था। स्वामी जी चुपचाप कोई सुविधा, सरकारी सुविधा मांगे बगैर एक गांव पकड़कर बैठ गए थे और वो गांव को पूरा बनाकर ही वहां से। इसके बाद में भी मेरा 2 बार संपर्क आया। मैं वो गांव के उद्घाटन के लिए वहां कच्छ गया था, जो स्वामी जी ने बनाया था। और उसके बाद भी जब भी मिला, मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े काम करने की प्रेरणा स्वामी जी कहाँ से लाते हैं, और ईश्वर उनको पूरी करने की भी बहुत बड़ी क्षमता देता है। आज वैदिक परंपरा और संस्कृति की शिक्षा देने का आपने यहाँ पर जो काम शुरू किया है, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूंगा, स्वामी जी मेरी नित्य प्रार्थना का हिस्सा रहेगा कि ये काम अनेक युगों तक चलता रहे और सनातन धर्म की सेवा करता रहे। इतने सारे विद्वानों के सामने, इतने सारे संतों के सामने विशिष्टाद्वैत दर्शन पर मेरे लिए कुछ बोलना असंभव है। मैं जन्म से वैष्णव हूं और शुद्धाद्वैत का अनुयायी हूं।
मेरी माता वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत के आधार पर ही पूरा जीवन जी, मगर मैं यहाँ विशिष्टाद्वैत पर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ना मेरी योग्यता है, ना इतने बड़े संतों के सामने मैं कुछ बोल सकता हूँ। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं आया हूँ तब मैं रामानुजाचार्य के लिए जरूर कुछ बात करना चाहूँ। हिंदू पंचांग में इसका चक्र 60 साल का होता है और 60वां जन्मदिन षष्ठ अब्द पूर्ति के नाम से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में मनुष्य के पूर्ण जीवन काल का अर्थ है 2 चक्र को जो जीवित रहता है 120 साल के पूर्ण जीवन की कल्पना करी है, और रामानुजाचार्य ने भी 120 साल का पूर्ण आयुष्य इस पृथ्वी पर होगा। और ईश्वर ने ही ढेर सारे कुरिवाजों को सनातन धर्म से बाहर निकालने के लिए और इतनी मधुरता के साथ अपने कर्तृत्व से बाहर निकालने के लिए रामानुजाचार्य के रूप में ही यहाँ आकर हम सब के बीच में 120 साल अपना काम करने का एक प्रयास किया था। और इसी का परिणाम है कि आज सनातन धर्म पूरा एक होकर फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की दिशा में जा रहा है। समाज में समता समरसता स्थापित करने के लिए द्वैत अद्वैत फिर विशिष्टाद्वैत, और उसमें भी आगे कई आचार्यों ने अनेक प्रकार से इसकी मीमांसा की। ब्रह्म सूत्र के एक प्रकार से जटिल ज्ञान से लोकभोग्य ज्ञान को बनाने का काम इन आचार्यों ने किया, और इसी के माध्यम से आज अनेक लोग बहुत बड़ा ज्ञान न होने के बावजूद भी अपना जीवन वेद के बताए रास्तों पर जी रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने जो जीवन पद्धति को बताया उसी को आचरण में रखा। और आज ज्ञान न होने के बावजूद भी कई लोग वेद के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान रामानुजाचार्य जी का था। आदिशंकर के अद्वैत दर्शन, माधवाचार्य के द्वैत दर्शन और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के कारण ही आज वैष्णव संप्रदाय ने अनेक प्रकार के जीवों को आगे बढ़ने का और वेद आधारित जीवन जीने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। रामानुजाचार्य ने मध्यम मार्ग को व्याख्यायित करते हुए विशिष्टाद्वैत की अवधारणा दी और भारतीय समाज में एकत्व लाने का, स्थापित करने का एक क्रांतिकारी काम किया। रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत दर्शन के कारण ही पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक सूत्र में बना। कई सारे भक्ति आंदोलनों के मूल ढूंढेंगे तो रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत के अंदर ही हमें मिलेंगे। मैं आगे इस पर आपको बताऊंगा। यहां पर बहुत सारे संत बैठे हैं। रामानुजाचार्य के जीवन को, इनके योगदान को सरल शब्दों में कुछ विभागों में अगर बांट देते हैं तो समता, समरसता एक, ज्ञान ग्रहण में समानता, सभी को ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार है, और ये भी उन्होंने प्रस्तापित किया। जातिगत भेदभाव को भी उस जमाने में 1000 साल पहले समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी काम किया। क्षमता के अनुसार काम का विभाजन, पूजा के अधिकारों को भी 20 मंदिर के पूरे संचालन को 20 हिस्सों में बांटा और हर समाज को इसके साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। भाषा की समानता को भी उन्होंने प्रस्तापित किया और मोक्ष के अधिकार को भी एक विशिष्ट वर्ग की जगह सब जीव को मोक्ष का अधिकार है अगर ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, इसको भी उन्होंने किया। और एक मेरे एनालिसिस से मैं जुड़ा है, मैं बात को बताऊंगा। रामानुजाचार्य अपने आप में बहुत विनम्र थे, परंतु वो विद्रोही भी थे। बहुत सारी कुप्रथाओं को इनके अंदर के विद्रोही आत्मा ने समाप्त करने का काम किया था। आज मैं यहाँ आया हूं तब उन्होंने श्रीरंगम में संन्यास लेने के बाद रामानुजाचार्य शालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे और कई सारे ग्रंथों की रचना की,
ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर लिखे 2 मूल ग्रंथ उनके बहुत लोकप्रिय हुए, श्री भाष्यम एवं वेदांत संग्रहम। उनके 9 ग्रंथ आज भी ढेर सारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मेरा जन्म एक बहुत छोटे से कस्बे में हुआ है, मानसा कर गुजरात से, अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर गांव है, और मेरे गांव में 150 साल पुरानी लाइब्रेरी है। ये 9 के 9 ग्रंथ वो लाइब्रेरी में आज भी उपलब्ध है। संदेश किसी के कर्तृत्व का कितना दूर जाता है, इसका ये उदाहरण है। श्री भाष्य वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रहम, श्री गीता भाष्य, नित्य ग्रंथ, शरणागति गद्य, श्री रंग गद्य और श्री वेंकुट गद्य, ये 9 के 9 ग्रंथ आज अनेक लाइब्रेरियों के अंदर उपस्थित है और कई जगह पे मुमुक्षु अपनी मुमुक्षा पिपासा को शांत करने का काम करते हैं। रामानुजाचार्य ने, मैंने जैसे पहले कहा, समता और समरसता का मैसेज अपने कर्तृत्व से दिया और उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को शिष्य भी बनाया, सभी वर्ग के लोगों के वो भी स्वयं शिष्य करे। और इसी में से आगे बढ़ते हुए रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए। इससे आगे बढ़ते हुए इनके शिष्यों में कबीर, रैदास और सूरदास भी हुए। और इस प्रकार से ज्ञान परंपरा न जाने कितने प्रदेशों में, कितने गांवों में पहुंची। अगर समता और समरसता का उन्होंने रास्ता न खोला होता तो कबीर दास को ये वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती, रैदास को वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती, सूरदास को भी न मिलती। और गुरु जी गोष्ठीपूर्ण की कथा भी बहुत हम सबको प्रेरणा देने वाली है। एक बार कुछ मंत्र सीखने के लिए रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण की वहां गए। 18 बार जाने के बाद भी उनको उचित नहीं पाया। 19वीं बार जब गए तब उन्होंने कहा कि आपको मैं मंत्र तो सिखाता हूं, मगर तभी सिखाऊंगा जब अयोग्य के सामने आप उसका उच्चारण नहीं करोगे। रामानुजाचार्य ने उनसे मंत्र सीखा और मीनार के ऊपर चढ़कर जोर से वो मंत्र को बोले। नीचे आए, गुरु गोष्ठीपूर्ण बड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से के भाव के साथ कहा कि ये क्या किया तुम नरक में जाओगे। तो रामानुजाचार्य ने बाल सहज विनम्रता के साथ कहा, नरक में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनेक जीवात्माओं का कल्याण होता है तो मुझे नरक भी पसंद है। और ये कहते ही गोष्ठीपूर्ण के पूरा गुस्सा शमन हो गया और उन्हें एम्पेरुनार मतलब मेरे भगवान ऐसा कहकर रामानुजाचार्य से गुरु ने स्वयं आशीर्वाद मांगे। जातिगत भेदभाव को भी रामानुजाचार्य ने समाप्त करने का काम किया। कांचीपूर्ण एक ब्राह्मणेतर जाति से जब वो उनका शिष्य बनने के लिए गए तब उन्होंने कहा कि परंपरा ऐसी है, आप ब्राह्मण हो, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। रामानुजाचार्य ने उत्तर दिया, यदि शास्त्रों का ज्ञान केवल ईश्वर की भक्ति की जगह अहंकार और अभिमान लाता है तो ज्ञान मिथ्या है, इससे बेहतर अज्ञानी रहना ही है। और उन्होंने बाद में उनके गुरु बनने की बात को स्वीकार किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इसको एक्नॉलेज करते हुए लिखा है, हिंदू धर्म में समता की दिशा में यदि किसी ने महत्वपूर्ण काम किया है और उनको व्यवहार में लागू करने का प्रयास किया है तो वो संत रामानुजाचार्य ने ही किया है। उन्होंने कांचीपूर्ण नाम के एक गैर ब्राह्मण को अपना गुरु बनाकर एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में देने का प्रयास किया था। समता के अनुसार भगवान की सेवा करने का सबको अधिकार है। इस बात को उन्होंने व्यवहार से मंदिरों के प्रशासन के अंदर लागू किया और उन्होंने प्रशासन के अंदर कई सारे 20 हिस्से बनाए और 20 हिस्सों में
मंदिर की टोटल प्रशासन को बांटकर उन्होंने सब समाज के लोगों को 20 के 20 हिस्सों के साथ जोड़कर सर समाज को मंदिर के लिए कुछ करने का अधिकार देने का काम किया। इससे सारा समाज आज मंदिर के साथ जुड़ा हुआ हमें देखता मिलता है। पूजा के अधिकार में भी उन्होंने समानता का अधिकार देने का काम किया। मेलकोट में अपने प्रवास के दौरान रामानुज ने देखा कि समाज के कुछ वर्गों के भक्तों को सामाजिक मानदंडों के कारण मंदिर के अंदर पूजा करने की अनुमति नहीं थी। इस प्रथा से वो बहुत दुखी थे। उन्होंने पुरानी प्रथा में कोई बदलाव करे बगैर एक नई प्रथा शुरू की। किसी भी भक्त की पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर भगवान की पूजा करने की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त किया और घर पर भगवान की देवता स्वरूप की व्यक्तिगत पूजा को सरल और व्यवस्थित किया। मित्रों, जब हमें दिखता है कि भगवान को मंदिर की जगह घर में ले जाकर समाज के हर वर्ग को पूजा का अधिकार दिया, आगे चलकर जब आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और मंदिर ध्वस्त होने लगे, रामानुजाचार्य ने भगवान को घर में रखकर पूजित करने की जो परंपराएं की थी, इसी के कारण हमारा सनातन धर्म आज बचा हुआ था। आज मेरे घर में भी राजभोग की सेवा लगी हुई है, मेरे घर में भी भगवान को भोग धराए जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम था जिन्होंने कपड़े से कपड़े समय के अंदर हमारे सनातन धर्म को टिकाने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम। महिला सशक्तिकरण के लिए भी भगवत रामानुजाचार्य ने ढेर सारे काम करे। तिरुवल्ली में एक दलित महिला के साथ शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने उस महिला से कहा कि आप मुझसे कई गुना ज्यादा ज्ञानी है। इसके बाद संत रामानुजाचार्य ने इस महिला को दीक्षा दी और उसकी मूर्ति बनाकर, एक दलित महिला की मूर्ति बनाकर मंदिर में प्रस्थापित कर समग्र सनातन धर्म के अनुयायियों को एक संदेश देने का काम उन्होंने किया। भाषा की समानता के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। संस्कृत भाषा के वेद, वेदांत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र साहित्य का सम्मान करते रहे, परंतु उन्होंने अजवारों के तमिल छंदों को भी मान देने की शुरुआत की और इसके अंदर भी वेद के ज्ञान को ट्रांसलेट करने का काम किया। रामानुजाचार्य ये दोनों भाषाओं को अपनी दोनों आंख मानते थे। इसके कारण ये प्रदेश के अंदर भी आज वेद बचा हुआ है। मोक्ष का अधिकार सिर्फ सन्यासियों को होता था, ऐसी किंवदंती थी। रामानुजाचार्य ने बताया, अगर छोड़ना ही सन्यास है तो अपने जीवात्मा की रक्षा जो ईश्वर पर छोड़ देता है, अपने जीवन को, अपने भाग्य को ईश्वर पर छोड़ देता है, वह भी सन्यासी है और उसको भी मोक्ष का अधिकार है। अपनी सर्वस्व ईश्वर को सौंपने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकार होता है और सर्व वर्ण के सभी पुरुष और महिलाओं को मोक्ष के अधिकार का भी उन्होंने किया। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनके पूरे जीवन में हमने तो देखा नहीं, ना सुना है, आज ना कोई रामानुजाचार्य से देखा हुआ व्यक्ति इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है, परंतु उनके जीवन से इतना मालूम पड़ता है कि बहुत विनम्रता के साथ बहुत सारी कुप्रथाओं को उन्होंने बदलने का काम किया। मगर वो आत्मा के अंदर, उनके आत्मा के अंदर कुप्रथाओं के प्रति विद्रोह का ही भाव था। विनम्रता और विद्रोह दो मिल जाते हैं तो सुधार जन्म लेता है। कुप्रथा को अविवेक करे बगैर अपने कर्तृत्व से बदलना, इसी को सुधार कहते हैं और ये काम भगवत रामानुजाचार्य ने किया है। और आज मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मैं देश भर के हिस्सों का मैंने भ्रमण किया है, देश भर के श्रद्धा केंद्रों के अंदर जाकर मैंने मेरा सर्च चुका है। कई सारे संप्रदायों में इसके मूल में जाते हैं तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत ही आता है। मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के मूल में जाएंगे तो आपको रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत मिलेगा। राजस्थान
राजस्थान और गुजरात के वल्लभ संप्रदाय में जाएंगे तो भी वो मिलेगा। मध्य भारत, बंगाल और मणिपुर के चैतन्य संप्रदाय में जाएंगे तो उसके मूल में भी ये मिलेगा। और असम के शंकरदेव और माधव देव के मूल में जाएंगे, उनके उपदेशों के मूल में जाएंगे तो भी आपको विशिष्ट अद्वैत मिले। एक व्यक्ति ने जो सिद्धांत प्रतिपाद किया जिसमें समानता का मूल मंत्र था, उसके देश के अनेक हिस्सों में शायद रामानुजाचार्य अपने जीवन में कभी मणिपुर नहीं गए होंगे, ना आसाम गए होंगे, परंतु गुजरात के एक छोटे से गांव में भी जाएंगे तो आज वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी मिलेंगे। आसाम के अंतिम गांव में मैं गया हूं जो बांग्लादेश की बॉर्डर पर है, वहां पर भी शंकर देव के अनुयायी मिलते हैं। और बंगाल के अंतिम गांव में भी गया हूं, वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करने वाले लोग, भक्ति संप्रदाय के लोग मिलते हैं। स्वामी रामानंद के बारे में कौन नहीं जानता। स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्यों में कबीरदास भी रहे। नाभादास जी, सेननाई, पीपादास, सूरदास सहित 12 महापुरुषों की परंपरा भी रामानुज से ही उत्पन्न हुई है। इस परंपरा का गुणगान करते हुए कबीरदास जी ने एक दोहे में लिखा है, श्री नारायण मूल हमारे, रामानुज की शाख, रंगकार में रमता जो की, गुरु रामानंद ने भाग। एक व्यक्ति के जीवन से जो दक्षिण भारत में जन्मा, तमिलनाडु में जन्मा, उसने कबीरदास को प्रेरणा देने का काम किया और कबीरदास ने समाज के सभी निचले वर्गों को उठाने का काम किया। और आज मैं इतना जरूर कहता हूं कि उन्होंने ढेर सारे मैनेजमेंट के लिए भी काम किए थे, मगर इसके बारे में जाने का भी समय नहीं है। आज मैं इतना कहना चाहता हूं, विशिष्टाद्वैत दर्शन और भक्ति संप्रदाय, ये दोनों जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक अक्षुण्ण रहेंगे, कभी कालबाह्य नहीं होंगे। और स्वामी जी आपने बनाई हुई मूर्ति भी युगों युगों तक रामानुजाचार्य के संदेश को आगे बढ़ाती जाएगी। और पूज्य संतों और माताओं, बहनों, भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये विधि का ही आशीर्वाद है, विधाता का ही आशीर्वाद है कि जिस कालखंड में स्टैच्यू ऑफ इक्विटी बनता है, उसी कालखंड में राम मंदिर का भी पुनर्निर्माण भव्य राम मंदिर का होता है। इसी कालखंड में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी 650 साल के बाद पुनरुद्धार होता है। इसी कालखंड में केदार धाम भी बनता है। इसी कालखंड के अंदर बद्री धाम का भी पुनर्निर्माण का नींव डाला जाता है। एक कालखंड है जहां से सनातन धर्म को उठकर जागरूक होकर समग्र विश्व के अंदर अपने दैदीप्यमान ज्ञान को आगे बढ़ाना है मित्रों। और आज मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्वामी जी ने निमंत्रित किया, मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। स्वामी जी, आपने ये महान कार्य के अंदर मुझे जोड़ा और रामानुजाचार्य के लिए कुछ बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं मानता हूं कि सालों सालों तक आपका बनाया हुआ रामानुजाचार्य का ये स्टैच्यू ऑफ इक्विटी विशिष्ट अद्वैत का संदेश विश्व भर को देगा, समानता का संदेश विश्व भर को देगा और सनातन धर्म का संदेश विश्व भर को देगा। फिर से एक बार समग्र देशवासियों की ओर से आपको प्रणाम कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, प्रीतम अमित शाह जी एक संत जैसा अनेक साल तक परिश्रम करके एक ज्ञान का भांडागार बनता है, ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में और उनका कार्यक्रम के बारे में और उनका सिद्धांत के बारे में
वे अपने जीवन में समाज को सुधारने के लिए कितने प्रकार संस्कार किए थे, उनके बारे में अत्यंत विवरणात्मक व्याख्या की हैं। ये तो आश्चर्य की बात है। आपको देश की सेवा करते हुए और इतने विषयों को अपने कैसा इकट्ठा किए हैं और उनको अच्छी तरह समझकर लोगों को अपने प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए आपका ही समय में भारत का गर्व बढ़ा है। मैं भी भारत का हूँ, ऐसा कहने के लिए देश में रहने वालों को और बाहर रहने वालों को भी दम मिल रहा है। ये तो बहुत आनंद की बात है श्रीमान अमित शाह जी, बहुत आनंद की बात है। आप स्वयं इतना समय लेकर यहाँ पर पधारे हैं। हम जानते हैं अभी आप कितने व्यस्त हैं, फिर भी समय निकालकर यहाँ तक आकर इस कार्यक्रम में भागते हुए इतनी प्रेरणात्मक व्याख्या आपने की है, ये अत्यंत ही आनंद दे रहा है। और जब से ये कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ हुआ, तब से जो यहाँ का सरकार और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर अपने KCRP हैं, वो भी तो एक वैष्णव है, वो भी बहुत भक्त ही हैं, और वो भी इस कार्यक्रम के लिए हर प्रकार की सुविधाएं बना के दी हैं। हम जानते हैं यद्यपि राजनीति में अनेक प्रकार की पंथाएं होते हैं, परंतु भगवान के सामने भगवत सेवा के लिए हम सब एक होकर आगे चलना है, ये बात मानते हुए वे अच्छा सपोर्ट किए थे। और यहाँ इतने भारी कार्यक्रम होने के लिए जो सरकार की ओर से जो रास्ता की व्यवस्था होनी चाहिए, और जल की व्यवस्था और विद्युत शक्ति की व्यवस्था, कई प्रकार की व्यवस्थाएं होते हैं ज़रूरत, उन सब में वे अपने योगदान से और इस कार्यक्रम को बहुत सारे सुविधाएं किए हैं, और उसके लिए भी हम बहुत ही आभारी हैं। और यहाँ हमारे इस कार्यक्रम का स्वरूप देने में हमारे डॉक्टर रामेश्वर राव साहब और हमारे लक्ष्मी नरसिम्हा राव जी और भास्कर राव जी करके और कई भक्तगण सब अपनी श्रद्धा से इस कार्यक्रम का स्वरूप साकार करने में सहयोग दिए हैं। धर्म के प्रति और देश की समग्रता के प्रति श्रद्धा रखते हुए ये सब भक्तगण इस कार्यक्रम को साकार किए हैं। और उन लोगों की सपना प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आना है, अमित शाह जी यहाँ पर आना है, और उनका कर कमल से इस कार्यक्रम लोकार्पण का काम होना है, ऐसा वो जो चाहते थे उसको आप साकार करके उन लोगों का मन अभी आनंद से पूर्ण किए हैं। अब हम धर्माचार्यों को भी प्रार्थना किए हैं, यहाँ पर आज और कल एक 4 बिंदु लेकर उसके बारे में चर्चा करके
उसको कुछ निर्णय भी लेकर आपको समर्पण करने के लिए वे चाहते थे, परंतु अब समय परमिट नहीं कर रहा है। फिर भी हम ये धर्म आचार्यों का जो भाव है और वे जो निर्णय लेते हैं उसको आपको हम भेजेंगे, समर्पण करेंगे और उसको कार्यान्वित करने के लिए जो भी करना है वो अवश्य ही आपका सहयोग उसके लिए होगा, ये हमारी आशा है। अब हम श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव जो माय होम इंडस्ट्रीज़ का अधिनेता है और भारतवर्ष TV9 का भी चेयरपर्सन है और इस कार्यक्रम के खास करके अत्यंत भक्त और सेवक बनकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देकर इस कार्यक्रम का साकारता में परिपूर्ण सहयोग दिए थे, उनको हम आह्वान करेंगे वो इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए ISO श्रीमान अमित शाह जी को अपनी कृतज्ञता का व्यक्त करें। जय श्रीमन्नारायण। His Holiness Sri 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 Tridandi Srimannarayana Ramananda Chinnajir Swamiji, since last 6 years, on the eve of Sahasrabdi, 1000 years of the Ramanujacharya and his greatness, under the context of today, to take to world and particularly India should gain with his philosophy, with that motive. Day and night last 6 years, Swamiji has put all of us in this work. We are lucky to involve in this work. Today, with our Honorable Prime Minister, this grand statue and message has been released to the nation and the whole globe is following now. And today is one more very important day. Our country most powerful Home Minister, Sri Amit Shah ji, in spite of his very busy schedule, we all know that 4-5 states going under elections. He is the troubleshooter. He spends almost 20 hours on this Samayampe, on the strategy and election. In spite of that, to give this great message of Sri Ramanujacharya, he has taken, specially came to Hyderabad and is seen and inspired, and we all seen what a great speech Sandesh is given. It will go throughout world. With this great leader's message, a Sandesh Pura, every one of this, our country should get benefit. We are so thankful, sir. We are always grateful to you. You are such a strong leader. Whole nation is observing you. After Sardar Vallabhbhai Patel, you stand up to that place and you have done so many courageous decisions under the able leadership of our Modi ji. And once again, I will thank you, our Honorable Minister, Honorable Home Minister of India and Minister for Coordination. And also I will thank you, our local
BJP party president, MP Bandi Sanjay, and our Jiva president Lakshmi Narasimha Rao, and all Sadhu Santu Logam, and everybody who participated in this event, all Bhaktagan, and all the workers who made this grand event more success, and particularly media taking this great message from the great leaders and great saints throughout globe. I thank you one and all. Thank you. Jai Sriman Narayan. Jai Sriman Narayana. What a wonderful delivery of speech it was. We remember a couple of verses from Valmiki Ramayana based on how well Ramanuja's history was shared here. Kon vasmin sampratam loke gunavan kascha viryavan dharmagyascha krutagyascha satyavakyo drudavrataha charitrena cha koyuktaha sarvabhuteshu kohitaha vidwan kaha kas samardascha kaschaika priyadarshanah atmavan ko jitakrodo Judiman ko anasuyakaha kasya bibhyate devascha jata rosasya samyuge. We now pray to His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji to honor our Home Minister Sri Amit Shah Ji. Of all the 16 qualities of Sri Rama, we would like to highlight a couple of qualities of Raja Sri Ramachandra from the 16 mentioned in Sri Ramayana. Rama is Dharmagna. He always strived to do his duty with righteousness as a king. His valor is Dharmapalana, was so great that even Devatas would tremble in fear to face Rama. We are very fortunate to have leaders running this great nation with these qualities that are proud, that are passed on to us by our ancestors, starting with Sri Rama. When our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji inaugurated the Samata Murti, he mentioned, we do not need to cut our roots of identity to march ahead towards the progress. Sri Amit Shah ji, gracing this occasion today, has given us so much strength. The Statue of Equality will indeed strengthen our dharmic roots, enhance our identity, and strongly imbibe the values of our Purvacharyas. Jai Sriman Narayana. The 9 gems of Bhagavad Ramanujacharya, what a great research Sri Amit Shah ji has done, and the way he explained about Vishishtadvaita Siddhanta and also Ramanuja Sampradaya augurs well for the nation because it talks about the power of equality. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana. We now have a wonderful program. Every day we have a program at this time performed by wonderful artists. Sukanya Ram Gopal ji has arrived here and she'll be performing Ghatam here. కైంకర్యమున చేయించుకున్న భాగ్యం ఒకటి. రెండోది మళ్ళీ యజ్ఞమూర్తి అనిన వారితో 18 రోజులు వాదయుద్ధం జరిగింది. 17 రోజులు రామానుజుల వారు ఊడిపోయారు, గెలవలేదు. అంత బాగా వారు యజ్ఞమూర్తి వారితో వాదం చేశారు.
రాత్రి 17వ రోజు రాత్రి అప్పుడు రామానుజుల వారు, అయ్యా మన పూర్వులు నాథమునుల వారు యామనాచార్యులు సంపాదించిన ఈ దివ్యమైన ఈ సంప్రదాయం నా కాలములో పాడైపోతుందే అని కష్టపడిన సందర్భంలో కంచి వరదరాజస్వామి స్వప్నముఖంగా వచ్చి కళరూపంగా వచ్చి వారికి కొన్ని విషయములు తెలియచేసి, అది వేరే ఏమి లేదు, యామనాచార్యులు అనుగ్రహించిన సిద్ధిత్రయములో ఉంటున్న కొన్ని విషయముల తెలియచేయమని చెప్పారు. అట్లనే తెలియచేసి వారును గెలించారు. ఈ విధముగా ఇంకా ఎన్నో వృత్తాంతములు చెప్పొచ్చు. అట్లా ఉంటున్న ఆ కంచి వరదరాజస్వామి వలనే మన రామానుజుల వారు పరిపూర్ణమైన భాగ్యం పొందినవారు. అటు ఉన్న ఒక దివ్య దేశం లేదు. మా తాతగారు అంటున్నవారు, కంచికి వెళుతాము అనినా కంచి అది ఒకటి లేదు. ఆ ఊరికి ఏమి పేరు? పెరుమాళ్ కోయిల్. అది పెరుమాళ్ కోవిల్. మళ్ళీ అక్కడ పెరుమాళ్ కోవిల్ కంచికి వెళ్ళినవతల అయ్యా గుడికి వెళ్ళి వస్తాము. గుడినా అని సంప్రదాయంలో కోయిల్ అంటున్నారు. కోయిల్కి వెళ్తాము. అక్కడ కొండలో ఉంటున్నారు తిరుమలలో. దానివల్ల కోయిల్, తిరుమలై, పెరుమాళ్ కోవిల్ 3 దివ్యక్షేత్రమున కలిసి ఉంటున్న దివ్యమనిన ఈ సాకేతములో అన్ని దివ్యక్షేత్రముతో సేవించడం పరమ భాగ్యం. అటు ఉన్న భాగ్యం ఎప్పుడు మనకు లభించాలి. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇంతవరకు ప్రసంగించినటువంటి స్వామి కంచి నుంచి వేయించేసినటువంటి రాజహంస స్వామి. ఈయన సామాన్యమైన స్వామి కాదు. మన శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పరమాచార్యులుగా కీర్తింపబడే ప్రతిపాది భయంకరం అన్నంగరాచార్య స్వామి అని మన సంప్రదాయానికి చాలా గట్టిగా ఉండేవారు. ఎన్నో గ్రంథములను రచించి ఎన్నో ప్రవచనములు చేసి ఇక్కడ మన తెలుగు భూమి మీద కూడా వారికి శిష్య పరంపర ఉంది. కృష్ణా జిల్లాలో అక్కడ వారు వచ్చేవారు. అటువంటి మహానుభావులు శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉండి మన పెద్దస్వామి వారి యందు ప్రీతి కలిగిన వారు. ఎందుకంటే వారు పెద్దస్వామి వారి యందు ప్రీతి కలిగి ఉండటం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. వారు సత్య సంకల్ప అని మన పెద్దస్వామి వారిని వారు పిలిచి తమ లెటర్ హెడ్ మీద సత్య సంకల్ప అని వేసుకున్నారు. ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. అన్నంగరాచార్య స్వామి వారు కూడా గౌరవించారా, వారు శిరస్సును పెట్టుకున్నారా అని ఆశ్చర్యపడవలసినటువంటి విషయం. ఆనాడు కంచిలో కంచి స్థానంగా ఉండి అటువైపున ఉత్తర దేశంలో కాశీ విద్యాస్థానంగా ఉంటే ఇటు దక్షిణ దేశంలో కంచి విద్యాస్థానంగా ఉండేది. శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయ విద్య మన కంచిలో చాలా అద్భుతంగా పరిఢవిల్లింది. భగవద్ రామానుజులు కూడా ఆరంభంలో కంచిలోనే శాస్త్రాధ్యయనం చేశారు. అటువంటి కంచిలో వేయించేసి ఉన్న కాంచి ప్రతివాది భయంకర అనంగరాచార్య స్వామి వారి వంశానికి చెందినటువంటి మహానుభావులు వారు ఇక్కడికి రావడం, ప్రసంగం చేయడం సర్వదా అది స్పృహణీయమైన విషయం. వారికి సర్వదా కృతజ్ఞతలు ఆవిష్కరిస్తున్నాం. కొద్ది సమయంలోనే అక్కడ పెద్దలు వేయించేసి ఉన్నారు. ఆ ప్రవచన మండపంలో ప్రవచనాదులు ఆ ప్రక్రియ అంతా సాగుతోంది. ఒక 5-10 నిమిషాల్లో వారు స్వామివారు బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. కనుక పూర్ణాహుతికి కావలసిన పూర్వరంగం అంతా కూడా మన స్వాములు ఇందులో ఏర్పరచుకుంటారు. స్వామివారి ఇక్కడికి వేయించేసేప్పటికి మనం పూర్ణాహుతికి సిద్ధంగా ఉంటాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. పంచసూక్త హవనాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాం. స్వాములందరూ గమనించగలరని ప్రార్థన. ఓం భూ స్వాహాగ్నదగిదం ఓం భవ స్వాహా వాజవైదం ఓం సవ స్వాహా సూర్యాజేదం ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా ప్రజాపతయ ఇదం ఓమదిదేన్వమగ్గుస్థాః అనుమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ప్రాణానాయమ్యా.
ఓం పూర్వోక్తదేవంగన విశేషణ విశిష్టారామస్యాం శుభతిథోగ్ధ సంకల్పిత హవనకర్మణి మధ్యే పంచసూక్త హవనం కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య ఓం అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవ సవితః ప్రసువ చరుణానృసూక్తేన షోడశాహుతయః ఓం సహస్రశీర్షా పురుషः సహస్రాక్షः సహస్రపాత్ సభూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్ఠద్దజాంగులగ్య స్వాహా పురుష ఏవేదకం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉదామృతత్వశేషానః యదన్నేనాతిరోహతి స్వాహా తావానస్య మహిమా అతో జ్యాయాగిష్ట పురుషः పాదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దిరి స్వాహా త్రిపాదోర్ధవదేత్పురుషः పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వం యక్రామతు శాసనాశనే అభిస్వాహా ఓం తస్మాత్ విరాట జాయత విరాజో అధిపురుషः స జాతో అత్యరిచ్యత పశ్చాత్ భూమిమతో పురస్వాహా ఓం యత్పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞమతన్వత వసంతో అస్యాసీదాత్యం గ్రీష్మ యుద్మః శరద్ధ విశ్వాహా స్యాదన్పరిధయః త్రిసప్తసమిధః కృతాః దేవాయ ద్యక్యం తన్వానాః అబద్ధం పురుషం పశుర్గ స్వాహా ఓం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రోక్షన్ పురుషం జాతమగ్రతః తేన దేవా యజంత సాధ్యారుషస్యే స్వాహా యజ్ఞాత్ సర్వభూతః సంభృతం పురుషతాజ్యం పశోగస్తాకృష్టక్రే వాయవ్యాన్ ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్రయే స్వాహా తస్మాత్ యజ్ఞాత్ సర్వహుతః సామానయజ్ఞరే ఛందాగంసయజ్ఞరే తస్మాత్ యజస్తస్మాత్ జాయత స్వాహా జాయంత ఏకేతో భయాతతః గావో చక్రే తస్మాత్ జాతా జావయ స్వాహా ఓం యత్పురుషం యదధో కతిధాభ్యకల్పయన్ ముఖం గవస్య కౌ బాహు కాభూరూపాదాబుచ్ఛేదే స్వాహా ఓం బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ బాహూరాజన్యకృతః ఊరూరదస్య ద్వైష్యః పద్భ్యాగం శూద్రో అజాయత స్వాహా ఓం చంద్రమా మనసో జాతః చక్షుసూర్యోదయాయత ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత స్వాహా నాభ్యాదిరంతరిక్షం శ్రేష్ణోద్యౌ సమవర్తత పద్భ్యాం భూమిర్తిశ్రోత్రాద్ తథా లోకాగం కల్పయన్ స్వాహా ఓం వేదాహమేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తపస్తు పారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరः నామాని కృత్వాభివదర్యదాస్తే స్వాహా చక్రః ప్రవిద్వాన్ ప్రతిశస్యతస్థః తమేవం విద్వానమృతయ భవతి నాన్యపంథాయనాయ విద్యతే స్వాహా ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమేజంత దేవాః తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ తే హనాగం మహిమానः సజంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాः సంతు దేవాः స్వాహా యనాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ స్వాహా నాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ స్వాహా విష్ణోర్నుగం వీర్యాణి ప్రబోధయ్యః పార్థివాని విమమేర్జాగం సుయో అస్కభాయదుత్తరగం రథస్థం విచక్రమాణస్త్రేధోర్గాయో విష్ణో పృష్ఠమతి విష్ణోస్న్యప్త్రే స్థో విష్ణోస్యూరసి విష్ణోర్ధ్రువమతి వైష్ణవమతి విష్ణవే స్వాహా ప్రియో వివాదోస్యన్నరో యత్ర దేవయవో వదంతి గురుక్రమస్య చైవం ధురిద్ధ విష్ణోః పదే పరమే మధ్వవుత్స స్వాహా విష్ణుస్తపదే వీర్యాయ మృగోణ భీమకుచరోగరిష్ఠాః యస్యోర్డుదృష విక్రమణేషు అధిక్షయన్ని భువనాని విశ్వా స్వాహా ఓం పరమాత్మయ ధర్మవృధార నదేమ హిత్వమన్వశ్రవంతి ఉభయతే విద్వరయసే పృథివ్యా విష్ణో దేవత్వం పరమస్య విత్సే స్వాహా విచక్రమే పృథివీ మేధ ఏతాం క్షేత్రాయ విష్ణుర్మనుష్యదత్యన్య ధ్రువాదోద్యకేన యోజనాతః వృక్షిత్రికం సుజనిమాతగాద స్వాహా ఓం ధృదేవ పృథివీ వేషయేదాం విచక్రమే మనుష్యదస్యన్ ధ్రువాసో అస్య కీర యోజనాసః ఆమా స్వాహా ఓం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానుదేవతం సమూఢమస్య పాగం సురే స్వాహా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యాధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా ఓం విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతేదో ప్రదాని పస్పశ ఇంద్రస్య యుధ్యః సఖా స్వాహా ఓం తద్విప్రాసో వన్యవో జాగ్రవాం సస్సమింధత
विष्णोर्यत्परमं ओम प्रदक्षिण नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ओम दामावहजातवेदो लक्ष्मीवरपगामनीं यस्यां हिरण्यं विन्द्ययङ्गामस्वं पुरुषानहं स्वाहा पूर्वां प्रथमध्यामस्तिनाथ प्रबोधिनीं प्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवे चतुर्धां स्वाहा ओम कांसास्पदां हिरण्यप्राकाराभार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां दामिहोपक्वये श्रियं स्वाहा चन्द्रां प्रभाताय तदा ज्वलन्तीं प्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तापनीमीं चरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणष्टितां त्वां ऋणे स्वाहा ओम आदित्यवर्णे तपसोद जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वाः तस्य फलानि तपसार्दन्तु भाजान्तरायास्य बाह्या लक्ष्मी स्वाहा प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्दन् ददातु मे स्वाहा ओम क्षितिपासावलां ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नाशयाम्याम् अभो दिवसमर्धिं च सर्वाण्यन्नतमे गृहात् स्वाहा ईश्वरीं सर्वभूतानां श्रियं स्वाहा ओम मनसक्या ममागोतिं वाचः सत्यं सेवहे पशूरां रूपवन्नस्य मयश्री श्रयदाम्य स्वाहा कर्दमेन प्रजा भूतामयदं भवकर्तमान् श्रियं मातरि मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा ओम आपस्सजन्तु स्निग्धान चिक्ले तव समय गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासुय मे कुले स्वाहा यक्षरणीं पुष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो स्वाहा आर्द्रां पुष्करणीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भवावः स्वाहा लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतङ्गावो दास्योश्वान् विन्दयं पुरुषाणं स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूमिर्भूम्नाद्यौर्वरणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते देव्यै देग्यमन्नादमन्नाध्यायादधे स्वाहा ओम त्रिगुंशद्धामविराजदिवाक्पदङ्गाय श्रिये प्रत्यहस्य वाहद्युभिः ఇవి ఇప్పటివరకున్న న్యూస్ అప్డేట్స్. మరిన్ని న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మీ ధరణి టీవీ. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to Dharani TV.